Hello everyone, welcome back to another part of the website development using React.js series. So in today's video, we are going to set up React router inside our React.js app. Actually, we'll see before setup that what is React router and how routing works and what actually routing looks like in an actual website. Okay, so for example, just take a look of some website. Suppose I'm going to Times of India. I'm going to Times of India, and here you can see this is the landing page. Means when I go to the main domain, this is the main domain as you can see here. So suppose, okay, sorry. So suppose I am click on this TV option, and see you can see here the landing page domain was this, and the when I clicked on the on a category, so you can see the route here, that is slash tv and slash hindi. Okay, and content is different. So the actual uh, here the topic is that how you can change your website content according to the UI. Sorry, user interaction means if user want to interact with your education page, photos page, blogs page, so how you can change the data on your website or how you can change your pages accordingly. So this is the main purpose of routing, and the package that we are going to use in our React application, that is going to be React Router DOM. So let me open official website of the React Router DOM. React Router, sorry, React Router DOM. So when I will search this, see this is the React Router home, and it is a package of npm. So we'll use npm to install this. Okay, and you can see here is a tutorial and picking a router and creating a browser router and all. So we'll go through a short line of code. We'll not see the whole documentation here, and I will tell you in very simple words that how you can set up. And sorry guys, I think I have told you very much things in English, so our playlist is in English, so I will use English. तो अभी हम पहले क्या करते हैं, एक वाइट एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं. एंड यू नो दैट हम वाइट का यूज़ क्यों कर रहे हैं, अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी. सो द रीज़न इज़ कि वाइट इज़ वेरी मच फास्ट दैन क्रिएट रिएक्ट ऐप. So we'll use the white. Okay, so the first command that is going to be used to create a white app, that is npm create white at the rate latest. Okay, so just copy that and आप अपने फोल्डर के अंदर आ जाओ. आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास काफ़ी सारे फोल्डर्स हैं. सो मैं इस न्यू फोल्डर के अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पे एक एप्लीकेशन ऑलरेडी बना हुआ है. मैं इस एप्लीकेशन के अंदर नहीं जाऊँगा, मैं एक नया फोल्डर बनाऊँगा, या फिर फोल्डर मैं नहीं बनाता हूँ. मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ. अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, इन केस आपके पास विंडोज़ 10 है या फिर और कोई विंडोज़ है, सो टर्मिनल ओपन नहीं हो रहा है आपका यहाँ से, सो सिंपली आप यहाँ पे जाओगे एंड CMD प्रेस करोगे, या सॉरी CMD टाइप करोगे एंड एंटर प्रेस कर दोगे. सी अपना विंडोज़ कमांड लाइन यहाँ पे ओपन हो गया है. नाउ वी हैव टू पेस्ट द कमांड है, और यू कैन ऑल्सो राइट. सो npm create white at the rate latest. इससे क्या होगा, अपनी एक रिएक्ट की एप्लीकेशन बन के रेडी हो जाएगी. मीन्स अपने पास एक बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा. सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड ये हमसे कुछ चीज़ें पूछेगा. सो हम उसे सिंपल स्किप करते चलेंगे. वाइट प्रोजेक्ट है तो हम अपने प्रोजेक्ट का नाम यही रखते हैं अभी के लिए. एंड द फ्रेमवर्क इज रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट. ओके, डन. और एप्लीकेशन हैज़ बिन क्रिएटेड. सी ये कितना फास्ट है रादर देन द क्रिएट रिएक्ट ऐप. सो वाइट प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर चलते हैं एंड इसके अंदर इस बार हम CMD ओपन करते हैं. ठीक है, अब हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर में हैं, जो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका था. नाउ विल सिंपली राइट npm install बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी हैव क्रिएटेड आवर एप्लीकेशन. तो पहली बार जब आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हो, आप यहाँ पे देखोगे नोड मॉड्यूल्स नाम का कोई फोल्डर ही नहीं है. सो नोड मॉड्यूल्स बेसिकली करता क्या है, वो सारे पैकेजेस को रखता है जो आपका एप्लीकेशन यूज़ करने वाला है. ओके, सो आई विल राइट npm install एंड जो भी पैकेजेस चाहिए होंगी हमें, वो ये इंस्टॉल कर लेगा. बट उसके साथ हमें एक और पैकेज चाहिए फॉर द राउटिंग, दैट इज़ द रिएक्ट राउटर डॉम. हियर यू कैन सी
ये थोड़ा इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा बिकॉज बहुत सारे पैकेजेस होते हैं इनिशियली। अगर आपका इंटरनेट स्पीड थोड़ा स्लो है तो आप थोड़ा सा वेट कर लेना, डोंट पैनिक। ओके, सो लेट्स वेट। एंड आप चाहो तो यहाँ से एक नया टैब भी ओपन कर सकते हो, बट मैं वो नहीं करने वाला। ओके, सो आई थिंक मेरा इंटरनेट थोड़ा सा फास्ट है, इसीलिए इसने थोड़ा जल्दी इंस्टॉल कर दिया। सो दिस इज़ द वाइट प्रोजेक्ट। नाउ npmi, आप npm इंस्टॉल भी लिख सकते हो, आप npm i भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। सो npm i react router DOM. So it will install React Router DOM in your application. Now your application can use React Router. So आप देख सकते हो ये एक बहुत काफ़ी छोटा सा पैकेज था और ये काफ़ी जल्दी इंस्टॉल हो चुका है। Now we have to open this in the VS Code, so we can edit its code and add new codes to enable routing. So simply write code dot, इससे क्या होगा, अपना एप्लीकेशन खुल जाएगा VS Code के अंदर में। Now see, अपने पास ये जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि कौन सी फाइल्स का क्या काम होता है, कौन से फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल्स होती हैं। सो इफ़ यू हैव नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियोस, सो गो एंड वॉच दैम, तो आपको थोड़ा बहुत जो है वो क्लियर हो जाएगा व्यू। ठीक है, नाउ गो टू द SRC फोल्डर एंड गो टू द main.jsx। यहाँ पे आप ये देख सकते हो दैट दिस इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ आवर एप्लीकेशन। ओके, एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोज दैट आवर एंट्री पॉइंट इज main.jsx. Okay, so now app is basically a file. It is not the entry point, it is a it is a pre-built फाइल आप कह सकते हो। एक पहले से बना हुआ फाइल है जो कि यूज़ किया गया है main.jsx के अंदर। आप कोई और भी फाइल बनाओ एंड उसे ऐप के जगह पे यूज़ कर सकते हो, एंड ऐप को आप डिलीट भी कर सकते हो, बट मैं उतना कुछ नहीं करने वाला। मैं पहले क्या करूँगा, ब्राउज़र राउटर इसमें इंपोर्ट करूँगा। ब्राउज़र राउटर इंपोर्ट इसलिए करना चाहता हूँ बिकॉज ब्राउज़र राउटर से अगर हम अपने ऐप को रैप कर दें, मीन्स कि ब्राउज़र राउटर टैग के अंदर हम अपने ऐप के टैग को डाल दें, देन आवर ऐप विल बी एबल टू राउट। अभी आप देखो यहाँ पे, मैं पहले टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ एंड स्टार्ट और डेवलपमेंट सर्वर। सो npm run and dev। सो थोड़ा सा वेट करते हैं एंड ये स्टार्ट हो चुका है। सो अभी हम चलते हैं अपने डेवलपमेंट सर्वर के ऊपर में। ओके, ये एक एप्लीकेशन है एंड ये थोड़ा जूम हो चुका है तो मैं इसे रीसेट कर देता हूँ। ओके, ये एक एप्लीकेशन है जो वाइट ने हमें ऑलरेडी बना कर दिया है। अगर आपने वाइट से पहले बनाया होगा तो आपको पता होगा। सो नाउ यहाँ पे आप देखो, अगर मैं जाना चाहूँ /about पे तो मुझे अबाउट का पेज दिखना चाहिए। अगर मैं /home पे जाऊँ तो हमें होम का पेज दिखना चाहिए। उसी तरह से जिस तरह से इस पे हम जा रहे थे, अगर हम इस पे जा रहे थे एंटरटेनमेंट पे तो हमें एंटरटेनमेंट दिख रहा था, सॉरी स्पोर्ट्स पे जा रहे थे तो हमें स्पोर्ट्स दिख रहा था, बट अब हम इसे अपने वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करेंगे। सो होम के लिए हमें एक होम की फाइल चाहिए होगी, अबाउट के लिए हमें अबाउट की एक फाइल चाहिए होगी। सो विल क्रिएट अ फाइल SRC के अंदर, एक आप फोल्डर बना लो, दैट फोल्डर विल बी स्क्रीन्स या फिर पेजेस। मैं यहाँ पर स्क्रीन्स बना लेता हूँ। बेसिकली आप स्क्रीन्स ऐप के अंदर यूज़ करते हो, सो दिस इज़ अ वेब ऐप, तो इसमें आप पेजेस का यूज़ करना, बट मैंने स्क्रीन्स का यूज़ कर लिया, डजेंट मैटर। नाउ इसके अंदर मैं दो फाइल्स बनाऊंगा, वन इज़ home.jsx। मेक श्योर कि आपका जो फाइल का नेम है ना वो फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, home.jsx। एंड मैंने पिछली वीडियोस में ये भी बताया था दैट व्हाट इज़ .jsx एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन .jsx एंड .js, .tsx एंड .ts। ओके, सो होम नाम की एक फ़ाइल बन गई अपनी, एंड एक और फाइल हम बनाएंगे about.jsx। इस फाइल के अंदर अपना होम का डेटा होगा एंड about.jsx के अंदर अपने सारे अबाउट का डेटा होगा। सो विल सिंपली राइट अ रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, एंड इसके अंदर डेटा है अबाउट नाम का एक टेक्स्ट। ठीक है, अब हम होम के अंदर चलते हैं एंड RFC एंड एंटर। सो होम के अंदर एक टेक्स्ट है जिसका डेटा है होम। मीन्स होम के अंदर कुछ ज़्यादा डेटा नहीं है, बस एक टेक्स्ट है जो लिखा हुआ है होम। इसके अंदर आप कुछ भी डेटा दे सकते हो, लाइक आप अपनी वेबसाइट को कुछ ऐसा लिखते हो लाइक कनेक्ट विथ मी ऐसा करके ना। सो आई एम राइटिंग कनेक्ट विथ अस, ग्रो योर बिजनेस
ओके, सो ये पर्टिकुलर जो डेटा है वो अपने होम के अंदर दिखना चाहिए, एंड ये पर्टिकुलर डेटा अपने अबाउट के अंदर दिखना चाहिए। अबाउट के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, लाइक कॉन्टैक्ट अस या फिर आवर एड्रेस एंड एड्रेस इज समथिंग लाइक दिस। आप अपना एड्रेस दे दो, अपने बिजनेस का, अपनी वेबसाइट का, ठीक है। नाउ अब हम इन दोनों फाइल्स को यूज़ कैसे करेंगे, विथ राउट, मीन्स कि अगर स्लैश होम पे जाऊँ तो होम दिखना चाहिए, स्लैश अबाउट पे जाऊँ तो हमें स्लैश अबाउट दिखना चाहिए। सो कम टू द app.jsx, एंड ये जो फालतू की लाइंस है ना, इन्हें अभी हम रिमूव कर देते हैं। डन, एंड आप यहाँ पे देखो इट इज़ क्लियर ना। सो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई डेटा है नहीं, सो दिस इज ब्लैंक। ओके, एंड नाउ गो टू main.jsx। अब हम क्या करते हैं, अपने ऐप को एनेबल करना चाहते हैं राउटिंग के लिए, तो हमें इसे रैप करना होगा ब्राउज़र राउटर के अंदर में। सो ब्राउज़र राउटर नाम का एक पहले से टैग बना होता है जो कि रिएक्ट राउटर डॉम के अंदर आता है, और रिएक्ट राउटर डॉम को हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। सो सिंपली राइट ब्राउज़र राउटर। आप यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन आ चुका है अपने पास, ब्राउज़र राउटर करके। सिंपली प्रेस एंटर, एंड आप देखो एंटर जैसे ही मैंने प्रेस किया एक इंपोर्ट आ गया अपने पास फ्रॉम दी रिएक्ट राउटर डॉम पैकेज से एक ब्राउज़र राउटर नाम का आ चुका है अपने पास एक टैग। नाउ सिंपली क्लोज दिस एंड ऐप को इनके बीच में प्लेस कर दो, एंड राइट क्लिक एंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, नाउ अब क्या हो चुका है, अपना ब्राउज़र राउटर जो है वो अब ऐप को रैप कर चुका है अपने अंदर में। मीन्स अब ऐप किसका चिल्ड्रेन है, ब्राउज़र राउटर का अब ये चिल्ड्रेन है। मीन्स ब्राउज़र राउटर की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ऐप के अंदर होंगी। ओके, नाउ गो टू द ऐप, क्योंकि ऐप को रैप किया है ना हमने। ओके, सो गो टू द ऐप। अब मेन कोडिंग राउटर की हमारी यहाँ पे आती है। अब हम राउट्स को डिफाइन करेंगे, मीन्स अपने पास कितने सारे राउट्स हैं, तो अपने पास अभी 2 राउट्स होने चाहिए, होम एंड अबाउट, क्योंकि अपने को अभी 2 ही कंटेंट शो करना है, ठीक है। तो अपन एक राउट्स नाम का इंपोर्ट ले लेते हैं। राउट्स, हियर यू कैन सी एक इंपोर्ट आ रहा है कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम से, यहाँ पे देखो आप। ओके, एंड इफ आई प्रेस एंटर, यहाँ पे देखो एक इंपोर्ट आ चुका है। सो ये राउट्स नाम का टैग पर्टिकुलर करता क्या है, इस टैग के अंदर हम डिफरेंट राउट को डिफाइन करते हैं राउट्स टैग के अंदर में, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट राउट इज ROUTE। सो ये राउट नाम का एक अलग इंपोर्ट है। अगर आप इस पे एंटर प्रेस करोगे, सी यहाँ पे 2 इंपोर्ट्स आ गए, राउट एंड राउट्स। तो राउट क्या करेगा, हर एक राउट को डिफाइन करेगा। राउट्स क्या करेगा, राउट को रैप करके रखेगा, मीन्स ये बताएगा कि कौन कौन से राउट अपने पास में हैं, ठीक है। नाउ दिस इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, आप इसे क्लोज कर लो, एंड यहाँ पे एक दे दो पाथ। नाउ इट इज आस्किंग फॉर द पाथ, कि आपका पाथ कौन सा होने वाला है। सी यहाँ पे जो कुछ भी है स्लैश होम, सो स्लैश होम इज अ पाथ, स्लैश अबाउट इज अ पाथ। ओके, सो अपने पास 2 पाथ हैं, तो पहले एक पाथ को डिक्लेयर करते हैं, स्लैश होम। ओके, अब होम पे कौन सी फाइल हमें दिखनी चाहिए, होम नाम की एक फाइल हमने बनाई है, तो होम पाथ पे हमें ये फाइल ही दिखनी चाहिए। सो सिंपली राइट एलिमेंट, मीन्स कौन सी एलिमेंट को हमें रेंडर करना है इस पर्टिकुलर पाथ के ऊपर में। सो एलिमेंट इज इक्वल्स टू इन द कर्ली ब्रेसेस राइट होम, एंड आप देखोगे जैसे ही मैंने होम पे एंटर प्रेस किया, देखो यहाँ पे होम का एक सजेशन आ रहा था, मैंने एंटर प्रेस किया, एंड मैं इसे क्लोज कर लूँगा सेल्फ क्लोजिंग टैग के थ्रू। आप देखो इंपोर्ट होम फ्रॉम होम, ठीक है, मीन्स ये भी इंपोर्ट हो चुका है, एंड इसे हमने यूज़ कर लिया है। मीन्स अगर हम स्लैश होम पे चले तो अपना होम दिखेगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं, अभी हम स्लैश अबाउट पे हैं, स्लैश होम पे चलते हैं, रीलोड करते हैं। देखो होम पे हमने जो डाला था डेटा, कनेक्ट विथ अस ग्रो योर बिजनेस, हमें दिख रहा है क्या, कनेक्ट विथ अस ग्रो योर बिजनेस। ओके, सो या ये दिख रहा है। नाउ द अबाउट, अभी अगर हम अबाउट के ऊपर चले तो अबाउट का डेटा हमें नहीं दिख रहा, बिकॉज हमने अबाउट को यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया हुआ है। सी यहाँ पे हमने सिर्फ होम को डिक्लेयर किया हुआ है। सो विल सिंपली राइट वन मोर राउट, एंड इसे पहले क्लोज कर लेंगे हम, एंड इसका एक पाथ दे देंगे। नाउ द पाथ विल बी अबाउट, एंड नाउ द एलिमेंट विल बी अबाउट। सी यहाँ पे एक इंपोर्ट आना चाहता है डॉट स्लैश स्क्रीन स्लैश अबाउट से, सो मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, एंड यू कैन सी एक इंपोर्ट आ चुका है।
नाउ दिस विल बी अ सेल्फ क्लोजिंग टैग एंड दिस इज क्लोज नाउ। आप देख सकते हो किसी भी फाइल के अंदर कोई एरर नहीं है अपने पास। सो नाउ अगर मैं स्लैश अबाउट पे जाता हूँ, यू कैन सी आवर एड्रेस इज दिस, और ये कंटेंट ही हमने डाला था अबाउट के अंदर में। So that's all guys for the React router, and in the next video we'll also see that how router nesting work. Suppose आप about पे जाते हो एंड about के अंदर आपके पास भी और पेजेस हैं, मीन्स about के अंदर भी और कुछ है। सपोज about के अंदर पहली जो चीज़ है वो है आपका मैप, दूसरा चीज़ है आपका कॉन्टैक्ट, तीसरा चीज़ है आपका एड्रेस, चौथा चीज़ है आपका फॉर्म। मीन्स इतनी सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं आपके अबाउट के अंदर में। सपोज और ये चीज़ें अभी आपको एक ही पेज के ऊपर दिख रही हैं। सपोज आप अबाउट स्लैश मैप के ऊपर जाओ तो आपको सिर्फ मैप दिखना चाहिए, स्लैश अबाउट स्लैश मैप अगर मैं कॉन्टैक्ट के ऊपर जाऊँ तो सिर्फ हमें कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दिखना चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड द नेस्टिंग ऑफ राउटर्स। तो ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। टिल देन ये अपने लिए ना काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है फॉर अ रिएक्ट राउटर। मीन्स इनिशियली यू कैन वर्क विथ योर राउटर एंड विल ऑल्सो सी कि आप नैव बार को कैसे प्लेस कर सकते हो, एंड विल ऑल्सो डिज़ाइन अ नैव बार इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड फॉर दिस वीडियो इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। I hope you like the video, so keep subscribing, keep liking,